Hello students. So in this session we will learn constructors in derived class. This is a last point from the third chapter. So we have already learned what is constructors in second chapter. So in this session we will learn what is constructor in derived class. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम लोग का एक इनहेरिटेंस है लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, तो जिसमें एक बेस क्लास है एंड सिंगल डिराइव क्लास है, तो क्या होगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में क्या होगा, डिराइव क्लास का एग्जीक्यूट होगा. अगर मल्टी लेवल है तो जैसे लेवल है ए बी सी, वो लेवल में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. बट तुम इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, लाइक जिसमें दो बेस क्लास होते हैं और एक डिराइव क्लास होता है, उसमें क्या होगा, जैसे तुम लोग ने डिराइव क्लास में वो डिक्लेयर किया है, लाइक तुम लोग जो लास्ट डिराइव क्लास लिखते हो, सपोज सी है, क्लास सी लिखोगे, इनहेरिटेंस ऑपरेटर पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, तो जो ऑर्डर में लिखा है, लाइक पब्लिक ए लिखा है फिर बी लिखा है, तो वो ऑर्डर में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. मतलब ए का पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में बी का होगा. बट तुम लोग ने ऐसे लिखा है कि पब्लिक बी कॉमा पब्लिक ए, तो बी का पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ए का होगा. Like in case of multiple inheritance, the base class is constructed in the same order in which they appear in the declaration of derived class. मतलब derived class की declaration में जैसे तुम लोग order लिखोगे base class का, वही order में वो क्या होगा, execute होगा. Okay. So we gonna solve one program here. Okay. So the it is a program for um, multiple inheritance, as you can see. Okay. So class A is the first class and it has data member A, small a. Class B is the second base class and it has data member B, and class C is the last class which is derived class and it has data member C. So it is a normal multiple inheritance program, but इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करने वाले हैं. ठीक है. So we will solve one program using constructor in derived class. So as we have seen in the last slide, there are three classes. First is class capital A and it has data member small a. Second is class B and it has data member small b. And third class is class C and it has data member class C. So the first class is class A. Okay. And it has data member small a. Okay. So in public, we must use one constructor. So the constructor name and class name is same. So constructor will be a, and to initialize the value of a, we will use it as parameterized constructor. Okay, int x. So value of a will be x. So to display value of a, we will use one function that is void disp a. It will only display the value of a. So we will use one sentence. We will add one sentence that is a class constructor. Okay. So here the function ends and here class ends. So the second class is class B, which is exact duplicate of class A. It has data member B, small b, and in public we will create one parameterized constructor. So value of b would be y, and we will add one cout b class constructor.
So whenever we will create object of class, then this statement gets executed like A class constructor, B class constructor, so that you can understand. Void disp B C out. It will only display value of B. So the class ends here. So the third class is important. Okay. So class C is, sorry, capital C is derived from class A and class B. Okay. So it has a data member int C. Okay. And in public, mm, we will use constructor. Now since this is the last class, so that is derived class, so the when we use constructor in base class, so it is a responsibility of derived class to accept the values for the base class. मतलब A and B में जो हम लोग ने constructor use किया है, तो it is a responsibility of क्लास सी कि वो ही उसका वैल्यू क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. सिंस हम लोग सिर्फ डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम लोग ने बेस क्लास में क्या यूज किया है, कंस्ट्रक्टर यूज किया है, बट वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. अगर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू कैसे एक्सेप्ट हम लोग करेंगे. ठीक है. तो डिराइव क्लास में क्या होता है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिराइव क्लास कि वो बेस क्लास के जो भी वैल्यू है वो भी वो क्या करेगा, खुद ही एक्सेप्ट करेगा. सो तो सी में क्या आएगा, इंट एक्स जो हम लोग ने ए के लिए लिया था, कॉमा इंट वाई जो बी के लिए लिया था, और एक आएगा इंट जी जो हम लोग यूज करने वाले हैं सी के लिए. ठीक है. तो ए में क्या है, एक्स है. ठीक है. एंड बी क्लास में क्या है, बी क्लास में क्या है, वाई है. ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन फॉर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तुम लोग को ये समझना चाहिए कि अगर तुम लोग बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर यूज करो, डिराइव क्लास में भी यूज करो, तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर तुम लोग डिराइव क्लास में कैसे यूज करोगे. ठीक है. सो डिराइव क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेस क्लास के भी क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को का वैल्यू क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के लिए वो वैल्यू क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है. ठीक है. सो क्या आएगा, सो सी इज इक्वल टू जी आएगा. ठीक है. सी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा. ठीक है. और दूसरा जो फंक्शन वॉइड डिस्प सी, सी आउट, सिर्फ ये सी का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, सी एंड. ठीक है. हम लोग इसमें भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट सी क्लास कंस्ट्रक्टर. ये सिर्फ तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कभी कॉल होने वाला है. जैसे तुम लोग अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, तो जैसे ए है उसके बाद बी है उसके बाद सी है, तो वही सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होने वाला है. अगर बट उसकी जगह मल्टीपल है, तो जैसे तुम लोग ने डिराइव क्लास का डेफिनेशन लिखा है, क्लास ए के बाद बी के बाद सी, तो वो वैसे एग्जीक्यूट होगा. मतलब पहले पब्लिक ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा. ठीक है. वॉइड मेन, हम लोग सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले. चीज मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ एक्स उसका ऑब्जेक्ट. ठीक है. और उसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स है, इंट एक्स, इंट वाई, इंट सी. तो तुम लोग को तीन के लिए वैल्यू क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. एक्स डॉट, अभी तुम लोग के पास तीन फंक्शन है, लाइक है डिस्प ए,
दूसरा है x डॉट डिस्प b, उसके बाद डिस्प c। ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी ए क्लास कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है, फिर बी क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है 3। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर थोड़ा चेंज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इधर बी कर देंगे और इधर क्या करेंगे, ए करेंगे। ठीक है, और वापस से रन करके देखेंगे। क्लियर, अभी इधर बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है, फिर ए क्लास का हुआ है, फिर सी क्लास का हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम लोग ने जो डिराइव क्लास डिफाइन किया है, तभी तुम लोग ने बी क्लास पहले लिखा, फिर ए लिखा, फिर सी लिखा है। इसके लिए क्या हुआ, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, ए क्लास का बाद में हुआ, सी क्लास का एकदम एंड में हुआ। वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। जैसे तुम लोग डिराइव क्लास में सीक्वेंस लिखोगे, वही सीक्वेंस में वो कॉल होने वाला है। अगर मल्टी लेवल है तो एक के बाद क्या, एक के बाद एक वो कॉल होने वाला है। सिर्फ सीक्वेंस का भी इम्पोर्टेंट है कि मल्टीपल अगर इनहेरिटेंस होगा, इधर तुम लोग ने मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज किया है, जैसे तुम लोग डिराइव क्लास में लिखोगे वैसे वो क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, हम लोग वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तुम लोग के पास 3 क्लास है, ए बी एंड सी, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस है। सो ए इज ए बेस क्लास जिसमें एक डेटा मेंबर है विच इज स्मॉल ए। ठीक है, तुम लोग को क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तीनों तीनों क्लास में तुम लोगों को कंस्ट्रक्टर यूज करना है। ठीक है, मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज, पैरामीटराइज ही करना पड़ेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया तो ए का वैल्यू क्या हुआ, एक्स। और सिर्फ ये तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा क्लास पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए लिखा है। तुम लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ए का क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड ए ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, सिर्फ ए का वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। सेम एक क्लास बी है जिसमें बी है, बी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इंट वाई लिखा, बी इज इक्वल टू वाई, बी क्लास कंस्ट्रक्टर, और बी का वैल्यू क्या किया, डिस बी में डिस्प्ले किया ना। सी क्लास इंपॉर्टेंट है, सिंस सी इज ए डिराइव क्लास एंड सी डिराइव हो रहा है क्लास ए से एंड क्लास बी से। जैसे तुम लोग सीक्वेंस लिखोगे, अगर पब्लिक बी कॉमा पब्लिक ए लिख रहे हो तो पहले बी क्लास एग्जीक्यूट होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा। अगर ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो तो पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ओके, सो कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास में क्या होता है, जो डिराइव क्लास होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बेस क्लास के वेरिएबल्स का वैल्यू क्या करे, वो मेंबर डेटा मेंबर्स का वैल्यू के लिए वैल्यू क्या करे, वो एक्सेप्ट करे। तो सी में क्या है, तुम लोग के पास ए एंड बी में तुम लोग के पास एक एक डेटा मेंबर था। हाँ, तो सी क्या करेगा, पहले ए एंड बी का डेटा मेंबर, फिर वो खुद के लिए एक डेटा मेंबर, फिर एक के पास क्या था एक्स, बी के पास क्या था वाई। तो सी क्या हो गया, जी हो गया। ठीक है, हम्म, सी क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस सी में सिर्फ सी, सी को क्या करें हम लोग, डिस्प्ले करें। नो, मेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इधर मैंने एक्स किया है। ठीक है, नो सी में क्या था, 3 पैरामीटर्स थे, एक एक्स है, एक वाई है, एक जी है। ठीक है, तो तुम लोग को 3 वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 1 2 3 किया है। तो डिस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, एकदम इजी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है प्रोग्राम। तुम लोग को सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि तुम लोग डिराइव्ड क्लास जब भी लिखोगे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऊपर के जितने भी क्लास है उसके लिए वो वैल्यू क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, so I want you to solve this question. Okay, so the first class is circle and it has data member R. ठीक है, so second base class is rect and it has data member L and B. Okay, and the last class and it is derived class which is triangle and it has data member base and height. Okay, तुम लोग को ये प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास से ही सॉल्व करना है। हर एक
क्लास में कंस्ट्रक्टर चाहिए. ओके. एंड दिस प्रोग्राम इज प्रीटी टफ, तो आई वांट टू सी किसको किसको सॉल्व करने को आता है. ठीक है. इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज, वी विल सॉल्व ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन. थैंक यू.